Dear students, Assalamu alaikum. My class is 7th, subject English, date 26th of May 2021. My topic is today a maid tea party. First of all, we are going to introduce you with the lesson. I want to introduce this lesson by giving the brief description to you. My introduction to this lesson is Alice becomes a guest at the maid tea party along with the March Hare, the Hatter, and the very tired Dormouse, who often falls asleep only to violently woken up moments later by the March Hare and the Hatter. The characters give Alice many riddles and stories, including the famous "Why is a crow like a writing desk?" तो बच्चों, हम जो ये कहानी आज जो ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो कैरेक्टर है एलाइस और बाकी एनिमल्स का, जिसमें मार्च हेयर, द हेटर एंड द वेरी टायर्ड डॉर्माउस, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एलिस जो है ये एक यंग गर्ल है जो वंडरलैंड में जा रही है और वहाँ कुछ अजीबोगरीब एनिमल्स देख रही है जो इंसान की तरह बिहेव करते हैं और बातें भी करते हैं। यानी वो जो वहाँ एनिमल्स देख रही है वो इंसानों की तरह चाल चलन और बातें कर रहे हैं। तो इसके बाद हम पहले लेसन पढ़ेंगे, पेज नंबर 20, जिसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 20 से। Alice, a young girl, wanders about in Wonderland where animals talk and behave like human beings. 3 animals are having a party. Alice is not invited, but she joins them. The behavior of the animals and what they say to Alice is very unusual. A table was set out under a tree in front of a house, and Alice saw the March Hare and the Hatter having tea at it. A dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other 2 were using it as a cushion and taking over its head. Very unfortunate, uncomfortable for the dormouse, thought Alice. Perhaps it is asleep. I suppose it does not mind. The table was a large one, but the 3 were all crowded together at one corner of it. No room, no room, they cried out when they saw Alice coming. There is plenty of room, said Alice angrily, and she sat down in a large armchair at one end of the table. Have some wine, the March Hare said in an encouraging tone. Alice looked all around the table. There was nothing to be seen on it except tea. I do not see any wine, she remarked. There is not any, said the March Hare. Then it was not very polite of you to offer it, said Alice angrily. It was not very polite of you to sit down
without being invited, said the marcher. I did not know it was your table, said Alice. It is laid for more than 3. You must cut your hair, said the hatter. He looked at Alice for some time with great curiosity, and this was his first remark. You must learn not to make personal remarks, Alice said. It was very rude. The hatter opened his eyes very wide on hearing this. But all he said was, "Why is a crow like a writing desk?" "We shall have some fun now," thought Alice. "I am glad that they have begun asking riddles. I believe I can guess that," she added aloud. "Do you think that you can find out the answer to it?" said the marcher. "Yes, I think so," said Alice. "Then you must say what you mean," the marcher went on. "I do," Alice replied. "At least I mean what I say. It is the same thing, you know." "Not the same thing a bit," said the hatter. "Why, you might just as well say that I see what I eat is the same thing as I eat what I see." तो इस तरह से बच्चों, जो हमने ये आज की कहानी पढ़ी, ए मैड टी पार्टी, इसमें एलाइज जो है वो एक वंडरलैंड में जा रही है। वहाँ वो कुछ एनिमल्स देख रही है। जो वो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर और उनका उठना बैठना वो इंसानों जैसा लग रहा था। तो एलाइस जब वहाँ पहुँची तो उसने एक हाउस के आगे एक टेबल लगा हुआ देखा। तो जहाँ वो 3 एनिमल्स बैठे थे, तो उन एनिमल्स में एक डॉर्मोस था जो नींद में पड़ा था। तो उसको वो एनिमल्स एज क्वेश्चन इस्तेमाल करते थे, यानी तकिया। जैसे हम तकिया का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह वो उसका भी इस्तेमाल करते थे। तो जो एलाइस है, एलाइस जब वहाँ पहुँची तो उसने कहा कि मुझे भी कुछ पिलाओ। लेकिन जो वो एनिमल्स थे उनको ये अच्छा नहीं लगा कि एलाइस उनके साथ उस टी पार्टी में बैठ जाए। तो उन्होंने उसको ऑफ़र किया वाइन। तो लेकिन जब एलाइस ने देखा तो वहाँ कोई वाइन नहीं था। तो उसने उनसे बोला कि आपने ये अच्छा नहीं किया, इट इज़ अनयूजुअल, जो आपने एक्शन की इट इज़ नॉट ए गुड। तो ये एक गैर फितरी या गैर अदबी बात है। तो उन्होंने कहा कि आपको भी यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपको इनवाइट नहीं किया गया है। तो ये बात एलाइस को बहुत बुरी लगी। तो इस बात से वो बहुत खफा हो गई। तो उसके बाद जब एलाइस वहाँ बैठी थी तो जो वो एनिमल्स थे उन्होंने उससे बातचीत करने के बाद कहा कि हम आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी रिडल्स हम उन सवालों को कहते हैं जो बहुत मुश्किल हो, पजलर हो। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन उससे पूछा कि वाई इज़ ए क्रो लाइक ए राइटिंग डिस्क, यानी उन्होंने ऐसे क्वेश्चन एलाइस से किए कि जो अनयूजुअल थे, जो सही नहीं थे, जो बिल्कुल बेमाना थे। तो उसके बाद उन्होंने इसके बगैर भी कुछ क्वेश्चन किए उससे, जो जिसमें एक क्वेश्चन था ये कि आई सी व्हाट आई ईट,
इज द सेम थिंग एज आई ईट व्हाट आई सी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब उससे बोले गए तो एलाइस से ये एहसास हुआ कि जो ये एनिमल्स हैं ये मुझसे चीटिंग कर रहे हैं, ये मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। तो लास्ट पर एलाइस ने ये सोचा कि वो उनसे खफा हो गई, तो वो वहाँ से चली गई। उसी दौरान उसने एक वाइट रैबिट को देखा, तो वो वाइट रैबिट के पीछे पीछे चली गई। तो वो एक जगह पहुँच गई, उसने वहाँ बहुत सी चीज़ देखे जो हैरान करने वाली चीज़ थे। तो उस पार्टी में जो एनिमल्स थे उनके अलावा भी कुछ चीज़ वहाँ देखने को मिले। तो इसके बाद हम आज थोड़ा इस लेसन के एतबार से इस लेसन के रिलेट कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं, जिनमें पहला वर्ड है अनयूजुअल, नॉट कॉमनली सीन और हर्ड। और उसके बाद है क्वेश्चन, ए सॉफ्ट पिलो और पैड यूजुअली यूज्ड फॉर सिटिंग नीलिंग। यानी अनयूजुअल हो गया कि जो कॉमनली सीन नहीं, यानी कॉमनली सीन जो हमने कभी नहीं सुना होगा या कभी नहीं देखा होगा उसको अनयूजुअल हम कहते हैं। तो जो हमसे मतलब बिल्कुल अच्छा ना लगे तो उससे अनयूजुअल कहते हैं। या कुछ हैरानगी की चीज़ देखेंगे तो अनयूजुअल कहेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन है कि हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं जो सॉफ्ट होता है, नरम होता है, तो उसको क्वेश्चन बोलते हैं। ये हम सिटिंग के लिए यानी सीट के एतबार से भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक और हमारे पास वर्ड है अनकम्फर्टेबल, फीलिंग फिज़िकल डिस्कम्फर्ट, यानी जिसमें इंसान फिज़िकली फिट न हो, फिज़िकली उसको आराम न मिले, तो फिज़िकली डिस्कम्फर्ट लगे यानी उसको आराम न लगे, तो उसको हम बोलते हैं अनकम्फर्टेबल। उसके बाद है क्राउडेड, क्राउडेड मीन्स फिल्ड विद मैनी पीपल और थिंग, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हों, 2 से ज़्यादा या 4 से ज़्यादा, तो वहाँ क्राउड हो, एक साथ बैठे हों, तो उसको क्राउड हम कहते हैं। तो उसके बाद वाइन है, ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, जैसे हम पेप्सी या वो दूसरा ड्रिंक पीते हैं, मतलब माउंटेन ड्यू जैसा। तो ये बना हुआ होता है जूस ऑफ ग्रेप्स, यानी ग्रेप का, जिसको हम बोलते हैं अंगूर। तो इसके बाद है रिमार्कड, रिमार्कड मीन्स कमेंट, रिफ्लेक्शन, द एक्ट ऑफ नोटिसिंग, यानी किसी जगह जाके इंसान कोई चीज़ देखे तो फिर उस पर कमेंट करे, फिर उसकी रिफ्लेक्शन दिखाए कि ये इसका मकसद क्या है ये करने का। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं इस लेसन से। तो पहला क्वेश्चन है हाउ वायर द एनिमल्स यूजिंग द डॉर्माउस। तो आंसर इसका है द एनिमल्स वायर यूजिंग द स्लीपिंग डॉर्माउस एज ए क्वेश्चन एंड टेकिंग ओवर इट्स हेड। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, वाई डिड द डॉर्माउस नॉट ऑब्जेक्ट बीइंग यूज्ड एज ए क्वेश्चन। The Dormouse did not object being used as a question because he was or pretended to be fast asleep, क्योंकि वो फास्ट स्लीप में था, बहुत गहरी नींद में था। तो उसको वो 2 एनिमल जो उसके बगैर हेटर और दूसरा वो था, इसका नाम था हेटर मार्च हेयर, वो इसको तकिए के एतबार से इस्तेमाल करते थे। तो उस पर हाथ रखते थे, उस पर अपना सिर रखते थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमने कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वस्सलाम।